السلام علیکم۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ انٹرنیٹ پر ابھی 5ویں کتاب کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس پر کام شروع کر رکھا ہے، برابر اس پر ویڈیو جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوتھی کتاب بھی اب شروع کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جن ساتھیوں کو جس کتاب سے استفادہ کرنا ہو، اگر چوتھی سے کرنا ہے چوتھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 5ویں کتاب سے استفادہ کرنا ہے تو 5ویں کتاب کی ویڈیو بھی جاری ہیں، یعنی دونوں کتابوں کے دونوں سبق ہم ڈالیں گے، چوتھی کتاب کے بھی اور 5ویں کتاب کے بھی۔ 5ویں کتاب کے تقریباً 36 سبق ہو چکے ہیں اور چوتھی کتاب آج شروع کی جا رہی ہے۔ تو چلیے ساتھیوں شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، خدا کی قدرت۔ از مؤلف: جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ روشن چیزیں بنائیں اس نے، اچھی شکلیں دکھائیں اس نے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ہر چیز ہے ٹھیک ٹھیک لا ریب، ہیں اس کے تمام کام بے عیب۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرندے آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ چڑیوں کی ہے بھانت بھانت آواز، پھولوں کا جدا جدا ہے انداز۔ محلوں میں امیر ہیں بآرام، ہے در پہ کھڑا غریب ناکام۔ ہے کوئی غنی تو کوئی محتاج، بے گھر ہے کوئی کسی کے گھر راج۔ روزی دونوں کو دی خدا نے، معمور ہیں قدرتی خزانے۔ خوشنمائی خوبصورتی، اشیاء چیزیں، شے کی جمع۔ یہ کوسٹ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شے یہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے، اس کا پلورل یعنی جمع اشیاء ہے۔ تو شے واحد ہے سنگولر ہے، اور اشیاء یہ جمع ہے پلورل ہے، اور ان کے معنی ہے چیزیں۔ نرالی عجیب و غریب، انوکھی۔ حکمت مصلحت۔ اس لفظ کی طرف ہم بطور خاص ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، دراصل ہم فارسی کے ٹیچر ہیں، تو ہم جب فارسی زبان پڑھاتے ہیں اس میں تلفظ کی طرف ہم بہت زیادہ دھیان دلاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، ہم جو 5ویں کتاب پڑھا رہے ہیں اس میں بھی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک لفظ وہاں بتلایا تھا، سوال پڑھتے ہیں سب لوگ، لیکن وہ لفظ سوال نہیں سوال ہے، اس لیے اس کو مصلحت پڑھتے ہیں۔ یہ اردو کا تلفظ غلط ہے، اردو کا صحیح تلفظ ہے مصلحت۔ تو آج آپ اس پر اچھی سی مشق کریں گے، بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے، اور بار بار اس کو اپنے مشق میں لے کر آئیں گے، اور اس کو خوب اس کا ذکر اور تذکرہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ زبان زد ہو جائے گا، اور پھر آپ جب بھی جس حالت میں بھی اس لفظ کو پڑھیں گے آپ کی زبان سے مصلحت ہی نکلے گا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو بھی الفاظ آئیں گے ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں ٹیچر ہونے کی بنیاد پر، اس لیے ہم ان کی طرف نشاندہی ضرور کرتے رہیں گے۔ تو آج آپ کو یہ ایک لفظ بطور خاص یاد رکھنا ہے، مصلحت۔ تو یہ لفظ مصلحت ہے، مصلحت غلط ہے۔ خوبی بہتری، لا ریب یقیناً بے شک بلا شبہ، چٹکنا کھلنا، پھدکنا اچھلنا، خوشی سے کودنا، چہکنا پرندوں کا گانا، خوش الحانی کرنا۔ عطر میں بسانا محاورہ، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عطر میں بسانا یہ محاورہ بولا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار کرنا، معطر کرنا۔ ناکام محروم نامراد، مایوس۔ غنی دولت مند مالدار، محتاج ضرورت مند غریب، معمور بھرا ہوا۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ موتی سے پڑے ہوئے ہیں لاکھوں، ہیرے سے جڑے ہوئے ہیں لاکھوں۔
क्या दूध सी चांदनी है चटकी, हैरान होकर निगाह ठिठकी। तारे रहे सुबह तक न वो चांद। ये लफ्ज़ हमने सुबह पढ़ा है, दरअसल इसका तलफ़ुज़ सुबह ही है। सुबह सुबह जो हम पढ़ते हैं वो उर्दू का सही तलफ़ुज़ नहीं है। तो ये अब तक का दूसरा लफ्ज़ हुआ जिसका तलफ़ुज़ हम सही करा रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को हमें सुबह नहीं पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। लिहाजा अगर हमने आज तक इसको सुबह पढ़ा हो तो समझो ये उर्दू का गलत तलफ़ुज़ है। तो सही तलफ़ुज़ है सुबह। तारे रहे सुबह तक न वो चांद, आगे सूरज के हो गए मांद। नीला नीला अब आसमां है, वो रात की अंजुमन कहाँ है। शाम आई तो उसने पर्दा डाला, फिर सुबह ने कर दिया उजाला। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से बदन है थर थराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। सर्दी से हैं हाथ पाँव ठिठरते, सब लोग अलाव पर हैं गिरते। सरसों फूली बसंत आया, सबने फागुन का राग गाया। फूटी नई कोपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। जाड़े की जो रुत पलट गई है, दिन बढ़ गया रात घट गई है। गर्मी ने ज़मीं को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। ठिठकना हैरत या खौफ से चलते चलते रुक जाना। मांद हो जाना मुहावरा बता रहे हैं कि मांद हो जाना, इसके माना नहीं ये बयान किए जा रहे हैं बल्कि एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है मध्यम हो जाना, आबो ताब जाती रहना, रंग फीका पड़ जाना। अंजुमन बज़्म महफिल जलसा, रुत मौसम, समा नज़ारा मंज़र। ठिरना सर्दी का असर, हो जाना ठिठरना। अलाव घास फूस और ईंधन वगैरह का जलता हुआ अंबार। सरसों फूलना मुहावरा, यानी ये भी मुहावरा है। ये जो माना है माना नहीं है, ये इसका मतलब है। माना अलग होता है, मतलब अलग होता है। तो मुहावरे का मतलब है सरसों के पौधे पर जर्द रंग के फूल आना, जर्द ही जर्द नज़र आना। बसंत मौसमे बहार। राग गाना, किसी का बार बार ज़िक्र या तारीफ़ व मदह सराई करना। गीत गाना, नगमा सराई करना। दल गिरोह, जत्था फौज। रौ आती है ज़ोरो शोर करती, दामाने ज़मी को कतरती। किस ज़ोर से बह रहा है नाला, ऊंचे टीले को काट डाला। बल खाके नदी निकल गई है, रुख अपना उधर बदल गई है। दरिया है रवां पहाड़ के पास, बस्ती है बसी उजाड़ के पास। बस्ती के इधर उधर है जंगल, जंगल ही में हो रहा है मंगल। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। सब्ज़े से हरा भरा है मैदान, ऊंचे ऊंचे दरख्त ज़ीशां। हम खेलते हैं वहाँ कबड्डी, मीरी है कोई कोई फिसड्डी। गायें भैंस अजब बनाई, क्या दूध की नदियाँ बहाईं। रव पानी का बहाव, सैलाब। बलखाना मुहावरा। इस मुहावरा का मतलब है, यानी बल खाने का मतलब है पेचो ताब खाना। रमा जारी बहता हुआ। मंगल चहल पहल, रौनक
लदी हुई, भरी हुई, लदना दरख्त पर बहुत से फल होना, ज़ीशा शानो शौकत वाला, शानदार। कबड्डी लड़कों के एक खेल का नाम जो मैदान या खुली जगह में खेला जाता है। यहाँ इसको हाशिया बोलते हैं, ये हाशिए का नंबर होता है। इसके तहत यहाँ से कुछ बात बयान की है, हम इसको भी पढ़ेंगे लेकिन इन माने को बयान करने के बाद। तो मीरी किसी काम या खेल वगैरह में सब पर सबकत ले जाने वाला। फिसड्डी खेल दौड़ में पीछे रह जाने वाला। फिसड्डी रह जाना मुहावरा, यानी ये भी मुहावरा है, पसमानदा रह जाना, हारना। तो ये जो हाशिया था, यानी लड़कों के एक खेल का नाम जो मैदान या खुली जगह में खेला जाता है, इस हाशिए के तहत इसको समझा रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। वरना फिर 5वीं किताब की तरह किसी साथी का कमेंट आएगा कि हज़रत ये जो नीचे छोटे छोटे लिखे हुए हैं इसे भी पढ़ा दिया करो। तो इसलिए हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसकी सूरत ये होती है कि बराबर के दो गिरोह बनाकर दोनों गिरोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, बीच में चंद फासिल मुकर्रर होते हैं। हद फासिल के इधर उधर की जगह जहाँ कोई गिरोह खड़ा हो पाला कहलाती है। एक गिरोह का लड़का कबड्डी लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, ये लफ्ज़ गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ ने गलती की है, हम ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर की या किसी लिखने वाले की गलती है। लफ्ज़ ये कबड्डी नहीं बल्कि कबड्डी है, तो इसकी हम निशानदही कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। कबड्डी, तो कबड्डी कबड्डी कहता हुआ और दायां हाथ रान पर मारता हुआ दूसरे गिरोह के पाले में जाता है। अगर वो मुखालिफ के किसी आदमी को छू कर बग़ैर दम टूटे पाले तक आएगा तो वो लड़का जिसको उसने छुआ है मर जाता है, यानी वो खेल से अलग होकर एक तरफ बैठ जाता है। और अगर मुखालिफ पाले के लड़कों ने उसे पकड़ लिया और हद्दे फासिल तक पहुँचने से पहले उसका सांस टूट गया तो ये मर गया। इस तरह खेलते खेलते जब किसी पाले के सब लड़के मर जाते हैं तो वो गिरोह हार जाता है और उसका नाम पाला होता है। पैदा किए ऊँट बैल घोड़े हर शय के बना दिए हैं जोड़े। रोशन आँखें बनाई दो दो कुदरत की बहार देखने को। दो होंठ दिए कि मुँह से बोलें शुक्र उसका करें ज़बां खोलें। ये लफ्ज़ जो है ज़बां और ज़ुबां दोनों तरह पढ़ना जायज़ है, यानी दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ज़ा पर पेश भी पढ़ सकते हैं ज़ुबां, और ज़ा पर ज़बर भी पढ़ सकते हैं ज़बां। ये आज के सबक में तीसरा ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जिसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में हम बता रहे हैं। कुछ ऐसे अल्फाज साथियों ज़रूर हैं जिनके तलफ़्फ़ुज़ हमें सही करने पड़ेंगे, वरना हमें कोई ये समझेगा कि ये उर्दू नहीं जानता है, सरसरी तौर पर उर्दू जानने वाला है। अगर आपने ये 10, 20, 100, 50 अल्फाज सही याद कर लिए तो इंशाअल्लाह हम गारंटी देते हैं कि आप जब किसी के सामने उर्दू बोलेंगे या लिखेंगे तो समझ जाएगा कि हाँ इस पर उर्दू अच्छी आती है। तो बहरहाल इसको ज़ुबां और ज़बां दोनों तरह पढ़ना जायज़ है और दोनों तरह पढ़ सकते हैं। बेशक है खुदा कवी व कादिर हर शय उसने बनाई नादिर। अस्सलामु अलैकुम साथियों, अगर आपको इस वीडियो से ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि हमें फ़ायदा हुआ है, और हमें दुआ में भी याद रखें और हमारे लिए मुसलसल दुआ करते रहें। दूसरी बात यह है कि हमारे एक मखसूस साथी हैं मौलाना सुहेल साहब, उनकी ज़िद की वजह से हमने 5वीं किताब शुरू की थी। वो कह रहे थे कि बहुत सारे साथियों का इसरार है कि आप 5वीं किताब पढ़ाएं, कोई भी इंटरनेट पर 5वीं किताब नहीं डाल रहा है। तो उनके कहने के बाद हमने 5वीं किताब शुरू की। अब उन्हीं का मशवरा बल्कि हुक्म और इशारा है कि आप 4थी किताब शुरू करें, तो उनके कहने के बाद हमने 4थी किताब शुरू की है। अगर आप पहला कायदा, पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब भी पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी इंशाअल्लाह तमाम सबक इसी तरह पढ़ाए जाएंगे।
सबक हमें सरसरी नहीं बल्कि तहक़ीक़ के साथ पढ़ने हैं, और तहक़ीक़ यही है। इस सबक में तकरीबन 3 अल्फाज ऐसे थे जिसमें रहनुमाई करनी ज़रूरी थी, हमने रहनुमाई कर दी। तीसरी बात यह है साथियों कि आप, ये बात कहने के लायक नहीं है अगरचे, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये ज़ुबान फैले और इसका रवाज आम हो। आपको कोई भी शिकायत या कोई भी बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कोई भी अगर उर्दू से मुताल्लिक़ नई बात मालूम करनी हो तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।